What is foreign key? Foreign key is an attribute or a combination of attribute that can be used to establish the relation between the tables. Between the tables means what? We have a table 1, we have a table 2, and that table we have created in a form of a relational data model. Whatever the structure we have studied so far, that structure is the part of the relational data model. ठीक है? We have a more than one table. If we are capable to establish the relationship between the first table with the second table, for that we have required some necessary criteria through which the record of the first table that can be added with the record of the next table. What I mean to say, the record of first table that can be consists of number of records, number of rows. These rows we may call as a tuple. We may call as a tuple, and that tuple that can consist of number of attributes, attribute 1, attribute 2, attribute 3, and so on. As per the requirement, the DBA is designing the structure of an existing database. Now, whatever this table we have, that table is having certain attributes. ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, एक STUD की एक टेबल क्रिएट किया था, याद आ रहा है? That table that can be consists of some attribute like your role, and that role, that attribute that has defined as a primary key. ठीक है? Why that attribute has been defined as a primary key? Because database designing that has to be done with the help of key. So primary key or key is an attribute or a combination of attribute that can uniquely identify the tuple from the given relation. ठीक है? तो primary key is an attribute or a combination of attribute that can uniquely identify the record from the given relation, and it cannot hold the null value. Mind it. वो null value को store नहीं करेगा. अब हमारे पास जो टेबल 1 है, जिसका नाम हम लोगों ने STUD दिया है, उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, मे बी 10 रिकॉर्ड्स, मे बी 100 रिकॉर्ड, मे बी 1000 रिकॉर्ड. ठीक है? एंड these record that has to be identified with the help of one attribute that is called role, and this attribute that can be uniquely identify the each record. मतलब पहले रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? रोल से हो रहा है. जैसे हमारे पास आधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार को इंप्लीमेंट किया. ये दिस इज द यूनिक आईडी. हर एक हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का एक यूनिक आधार नंबर है. तो हम आप उसी आधार नंबर से पहचाने जाते हैं. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट, हमारी संस्थान में 1000 बच्चा इनरोल्ड है. ठीक है? और हर एक बच्चे के लिए हम लोगों ने या परिषद ने, बोर्ड ने यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे रखा है, और उस यूनिक एनरोलमेंट नंबर से हमारा ये बच्चा इस संस्थान का है, कहाँ का है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ हमारा एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना है, एक हमने डेटाबेस बनाया मार्क्स का. इस डेटाबेस के रिकॉर्ड को इस डेटाबेस के रिकॉर्ड से हमें जोड़ना है कि रोल नंबर 1, आईटी का रोल नंबर 1 या PGDCA का रोल नंबर 1 कितने नंबर पाया है इस सब्जेक्ट में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में, या टोटल मार्क्स उसके क्या है, उसकी मार्कशीट कैसे जनरेट करनी है. These are the certain examples that we can carry out with the help of database system. And that database, if the DBA is designing the database that has to be kept as a backhand, वो सर्वर के ऊपर रखा रहता है, फ्रंट एंड से क्लाइंट इंटरफेस करता है. मतलब क्या होगा, एक फॉर्म डिजाइन किया जाएगा, फॉर्म से हम लोग के मदद से हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, या एप्लीकेशन प्रोग्राम से हमारा यूजर उस डेटाबेस में वर्क करता है. जैसे हमने आपको पिछली क्लासेस में कहा कि हमारे यहां आईटी के कुल कितने बच्चे हैं, आईटी फर्स्ट ईयर में कुल कितने बच्चे हैं, तो हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा. पहले तो हमें पाठ्यक्रम पे लगाना पड़ेगा, पाठ्यक्रम पे लगाने के बाद फिर हमें फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर लगाना पड़ेगा. उसको अगर ये दो चीजें फिल्टर हम लगाते हैं तो हमारी संस्था में 10 ब्रांचेस चलती है, आप भी जानते हैं, तो हमें केवल आईटी फर्स्ट ईयर के बच्चे निकलेंगे.
तो एक हमारी एक विजन हो सकता है, एक हमारा एप्लीकेशन हो सकता है। उसी तरह से अभी आपके डीबीए ने, आपके एचओडी ने कहा कि नहीं, हमें आईटी के साथ साथ, आईटी के बच्चों के साथ साथ हमें आईटी में कुल कितने बच्चे हैं सबका रिकॉर्ड हमें बताइए। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन प्रोग्राम जनरेट करना पड़ेगा। या हमने कहा कि हमारे पास टोटल सेकेंड ईयर में जो हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर में ऑनर्स मार्क्स पाए हैं उन बच्चों के नाम डिस्प्ले करिए। या हमें उन बच्चों के पिछले 5 साल में हमारी संस्थान में कितने बच्चे स्टेट में टॉप किया या स्टेट के टॉप 10 रैंक में आए, उनके नाम बताइए। यू हैव टू सर्च द डेटाबेस। तो हाउ योर डेटाबेस, दैट हैज टू बी सर्च विद द हेल्प ऑफ एनरोलमेंट नंबर। This is the unique ID. This is this attribute that can be defined by the DBA as a primary key. ठीक है, यहां पे हमारी प्राइमरी की रोल हो गया। यहां पे दूसरे एट्रीब्यूट, दूसरा टेबल है जिसको हम लोगों ने मार्क्स कहा, उसमें भी एक रोल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस टेबल 1 में जो एट्रीब्यूट है वो रोल के नाम पे है और वही एट्रीब्यूट का रिकॉर्ड इस टेबल में मैच कराना है, तो इसमें एट्रीब्यूट का नाम रोल ही रखिए। आप एस रोल भी रख सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि जो डेटा टाइप होता है, जैसे हमने रोल का डेटा टाइप क्या रखा, नंबर रखा था, उसकी साइज हमने क्या रखी थी, 2 रखी थी। तो इसमें अगर हमने दूसरी टेबल में, टेबल 2 में हमने रोल की जगह पे हमने क्या डिफाइन कर दिया, एस रोल, स्टूडेंट रोल। पर उसका व्हाट वी हैव टू कीप द सेम डेटा टाइप। तो वहां पे नंबर था तो यहां पे भी नंबर होना चाहिए, अदरवाइज डेटा मिसमैच का एरर मैसेज यू विल गेट। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेन की एंड हाउ द फॉरेन की दैट विल वर्क इन आवर डेटाबेस। दिस इज आवर टुडेज लेक्चर्स दैट आई एम गोइंग टू कवर फर्स्ट। तो यहां पे देखिए, ये फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम टेबल आर फ्रॉम अदर टेबल। इसका मतलब क्या है, टेबल 1, टेबल 2, इसका डेटा हम यहां से डिराइव कराते हैं। इस टेबल में 1 में हमारा ये एट्रीब्यूट रोल क्या था, प्राइमरी की था। इस टेबल T2 में जो मार्क्स की टेबल है उसमें भी रोल क्या है, हमारा प्राइमरी की है। पर ये जो प्राइमरी की है, इस टेबल के रेफरेंस में वो फॉरेन की तरह से वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है कि जो वैल्यू यहां पे टेबल 1 में रोल की है, 1 2 3 4 5 है, तो वही रोल यहां पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन नॉट कोरिलेट द रिकॉर्ड ऑफ टेबल 1 टू टेबल 2। सपोज रोल नंबर 10 इज नॉट प्रेजेंट इन आवर टेबल 1 एंड वी आर एंटरिंग द रिकॉर्ड ऑफ रोल 10 इन आवर टेबल 2, it cannot insert that record because its value that has to be derived from this table, this primary table is called base table. ठीक है, and this table, marks table, that has to be called as a reference table. These two features that you have to remember throughout the class, right? Now foreign key can contain duplicate value. हो सकता है इट कैन कंटेन नल वैल्यू। यहां पे प्राइमरी की में हमने क्या बोला था, नल वैल्यू नहीं स्टोर होगा, पर फॉरेन की में नल वैल्यू स्टोर कर सकता है। फॉरेन की रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, जैसा अभी हमने एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ए फॉरेन की इज ए कॉलम और ए ग्रुप ऑफ कॉलम हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द सेम टेबल आर फ्रॉम, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया। नाउ फॉरेन की रेफरेंस कंस्ट्रेंट reject insert update value if the corresponding value does not exist। जैसे हमने क्या बोला, जब रोल नंबर 10 यहां पे नहीं है और यहां पे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं टेबल 2 में, तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि दिस इज द रेफरेंस टेबल एंड दिस इज द बेस टेबल एंड this reference table will correlate the data from the base table. That's why it will reject the value. Fine. सपोज अभी हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट क्या है, रोल, डेटा टाइप कैर, साइज इज 4, नेम, सिटी, एक्स्ट्रा। अब इसमें हमने रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लिया, जैसे हमने यहां पे दिखाया है, वैल्यूज 1 अलका वाराणसी, राइट। सिमिलरली हमने एक और टेबल बनाई जिसका नाम हमने क्या कहा, कोर्स है, उसको टेबल हमने क्रिएट किया, यहां पे हमने आपको क्रिएट कर लिया, उसका डेटा वैल्यू हमने यहां पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए,
एक टेबल ये कोर्स वाली हमने बनाई है, ठीक है। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट ले लिया, कोर्स आईडी, नेम और रोल, ठीक है। और इसका रेफरेंस जो है हमने कहां से स्टार्ट है, स्टूडेंट टेबल से, ये पहले वाली टेबल से, और इसका रोल लिया। ऑल्टर टेबल कमांड इसको हम लगा रहे हैं। अभी हम आपको एक क्वेरी करके दिखाते हैं। आप जस्ट यू फोकस ऑन योर सिस्टम, जस्ट यू सी। देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या बनाया था, एक टेबल बनाई थी जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, सेलेक्ट SUD ना। हम इसको देखना चाहेंगे कि इसमें क्या रिकॉर्ड मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज द रिकॉर्ड, दीज 4 रिकॉर्ड हैज बीन एंटर्ड इन आवर टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जस्ट यू सी द स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, DESC STUD, this is the name of the file, and here this is the structure, and that structure that has to be created at the logical level, आपको पता है। और यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट रोल है, उसका डेटा टाइप है, उसकी साइज है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी की डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक कंस्ट्रेंट लगा रखा है, एंड दैट कंस्ट्रेंट वी मे कॉल्ड एज ए प्राइमरी की। How you will define data constraint? Anyone? At the time of creation of a cell, मतलब हम कोई एट्रीब्यूट जब हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट की डेटा टाइप, एट्रीब्यूट की साइज। In spite of these 3 parameters, if some more parameters are added by the DBA, is called data constraint, ठीक है। हमने यहां पे क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया, प्राइमरी की, ठीक है। हम नल लगा सकते हैं, नॉट नल लगा सकते हैं, फॉरेन की लगा सकते हैं, यूनिक की लगा सकते हैं, लाइक दैट डिपेंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द DBA, राइट। तो यहां पे आप देखिए एक टेबल ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेबल। सपोज हमारे पास क्या है, एक मार्क्स के लिए हमने टेबल बनाई थी, डू यू रिमेंबर, देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसके क्या रिकॉर्ड्स हैं इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे देखिए हम पहला आपको दिखाएंगे कि इस टेबल में, मार्क्स टेबल में हमारा जो रोल है, दैट रोल इज एन एट्रीब्यूट, एंड दिस एट्रीब्यूट हैज बीन डिफाइंड एज ए प्राइमरी की। पर हमें क्या करना है, एज ए फॉरेन की इसको परिभाषित करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन एज ए फॉरेन की। अगर जब तक हम फॉरेन की नहीं डिफाइन करेंगे तो टेबल 1 का रिकॉर्ड टेबल 2 के रिकॉर्ड से नहीं जुड़ेगा। बात समझते हैं। तो हम, इसका मतलब क्या है, मैं एक DDL का एक कमांड, आई एम गोइंग टू यूज वन कमांड ऑफ द DDL दैट इज कॉल्ड ऑल्टर टेबल कमांड। डू यू रिमेंबर, प्रैक्टिकल किया है आपने। वो ऑल्टर टेबल कमांड से क्या करता है, जस्ट वी आर ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग डेटाबेस का। इसका मतलब जस्ट यू रिमेंबर अबाउट डेटा इंडिपेंडेंस। व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा डेफिनेशन ऑफ वन लेवल without causing the application program rewritten, that is called data independence। हमें क्या करना है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस करना है। तो is the ability to modify the schema definition of one level without causing the application program rewritten, and it will not affect the schema definition of the next higher level। अगर हम फिजिकल के ऊपर चेंज करें, that is called physical data independence। अब यहाँ पे हम एक कमांड यूज करने जा रहे हैं, जैसे यू सी, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, जैसे यू से ऑल्टर टेबल, क्या टेबल का नाम, ऐड
कंस्ट्रेंट किसके ऊपर, हमें रोल के ऊपर फॉरेन की बनानी है, एफ की, वो तो प्राइमरी की ऑलरेडी बनी हुई है, अब इसी को हमको क्या करना है, फॉरेन की। तो एट्रीब्यूट के बाद अंडरस्कोर और यहां पे डिफाइन करेंगे, दिख रहा है एफ की। एफ की का मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट फॉरेन की तरह से पहचाना जाए, समझ रहे बात। नाउ फॉरेन की, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा किसके ऊपर बना रहे हो, किस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बना रहे हो, रोल। यस, ब्रैकेट में रोल, और ये किस टेबल से के रिकॉर्ड को कोरिलेट करे, तो इसका मतलब यू हैव टू असाइन द रेफरेंस, राइट। तो यहां पे आप ले लीजिए दैट इज रेफरेंसेस, क्या, STUD, ठीक है। Now I'm going to fire the query. What you will get? क्या बोलता है, टेबल ऑल्टर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, the structure of existing database is now changed। क्या हमने चेंज किया, कोई बताएगा, हमने क्या क्वेरी, इस क्वेरी से हमने मार्क्स की टेबल के ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाए, कोई, एनीवन? अगर आप नहीं समझ पा रहे, जस्ट यू आस्क वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कहां पे समस्या है वो बताइए। नहीं समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आया, क्या चीज नहीं समझ में आई? हमने क्या करने की कोशिश किया, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम STUD है, उसमें एक एट्रीब्यूट है एंड दैट एट्रीब्यूट इज डिफाइंड एज ए प्राइमरी की, ठीक है। इसमें हमारे 100,000 रिकॉर्ड हैं, 10 लाख रिकॉर्ड हैं। इस रिकॉर्ड को हमें टेबल 2 के रिकॉर्ड से जोड़ना है। इसमें हमारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, इसमें हमारे स्टूडेंट ने क्या क्या नंबर पाए हैं, किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर पाए हैं, उसके रिकॉर्ड को जोड़ना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो जोड़ने के लिए हमारा क्या होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द एट्रीब्यूट दैट हैज टू बी कॉमन बिटवीन द टेबल, कोई चीज तो होनी चाहिए ना। तो आपने बोला कि रोल इज कॉमन, रोल इज कॉमन। तो यहां पे हमारा प्राइमरी की था रोल, यहां पे भी हमारा प्राइमरी की होगा, पर हमें इस टेबल के रिकॉर्ड को इस टेबल के रिकॉर्ड से जोड़ना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहां पे जो रोल है इस टेबल में इसको फॉरेन की परिभाषित करना होगा, और इसके डेटा कहां से उठे, इस टेबल से उठे, इसका रेफरेंस भी बताना होगा। तो वह स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर देखने के बाद हमारा स्ट्रक्चर में जो आया वो स्ट्रक्चर से हमारा क्या पता चल रहा है कि मतलब उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट आपने लगा रखे हैं। कंस्ट्रेंट लगाने के बाद हमने ये देख लिया कि अब उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया ऑल्टर टेबल कमांड से। स्ट्रक्चर मेरा ऑल्टर हो गया। नाउ वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड। हाउ वी कैन, ये इधर से ये इसकी आई इमेज, एक पीछे से लो, ये स्ट्रक्चर फिर हम लोग इंसर्ट करने के बाद हमारा क्या हुआ, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा।
इंसर्ट होने के बाद फिर हमें क्या करना है कि बेस टेबल 1 और ये रेफरेंस टेबल के रिकॉर्ड को हमको कोरिलेट कराएंगे। तो कोरिलेट कैसे कराएंगे? तो पहली बात तो आप इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करिए। रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट की क्वेरी क्या थी आपकी? इंसर्ट की क्वेरी क्या थी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, स्ट्रक्चर में क्या है, रोल और मार्क्स दोनों नंबर तो है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यही सिंटैक्स है ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है सिंटैक्स? यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेशन क्यों? उसी का डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होगा, है ना। ये क्वेरी हमारी रन करेगी, क्या बोलता है? वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। बोला क्यों? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ये इतने रोल नंबर के डेटा हमारी बेस टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम डालना चाहते हैं 1 2 3 4 के अलावा कोई और रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, तो कि वेदर दैट रिकॉर्ड दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन योर रेफरेंस टेबल होगा? नहीं होगा। नहीं समझ पाए आप बात? भाई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉरेन की भाई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एक या एक से ज्यादा टेबल के डेटा को जोड़ता है, नंबर एक बात, और उन्हीं के रिकॉर्ड को हम फॉरेन की टेबल में हम इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आपकी बेस टेबल में एग्जिस्ट करती हो। जैसे आपके यहाँ रोल नंबर 10 है, पढ़ ही नहीं रहा है, उसका हम नंबर यहाँ कैसे डाल देंगे? मान लीजिए आपके यहाँ कोई बच्चा ने एडमिशन लिया, किन्हीं कारणों से उसने नाम कटवा लिया या काट दिया गया, तो यहाँ पे बेस टेबल से उसका रिकॉर्ड हटाओगे ना, और यहाँ पे उसके नंबर इंसर्ट करोगे, तो नंबर रखने का फायदा क्या है? इज देयर एनी एडवांटेज? नो, दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो ये सिक्योरिटी आपको डीबीए दे रहा है, ओरेकल दे रहा है, डेटाबेस दे रहा है। मतलब अनवांटेड डेटा, देखिए डेटा एज पर द कंस्ट्रेंट ही आपकी क्राइटेरिया है। डेटाबेस satisfy the data constraint. If data is not as per the constraint, data will not allow by the database. ये कहने की बात है ना। अब हम यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है, तो क्या दोबारा नंबर इंसर्ट होगा? नहीं होगा। हम फिर से करके दिखाते हैं आपको, वो बोलेगा वायलेशन। देखिए अब इसी रिकॉर्ड को हम फिर से रन करते हैं। रोल नंबर 1 है जो हाईलाइट हो रहा है, रोल नंबर 1 में 34 नंबर है, हमने कहा नहीं 34 नहीं पाया, 44 पाया है, ठीक है, ये है, मान लो ये है, तो क्या बोलेगा? क्या बोला? यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। इसका मतलब क्या है कि वंस द रिकॉर्ड हैज बीन एंटर्ड इन योर फॉरेन की टेबल, दैट विल नॉट अलाउ टू रिपीट द डेटा अगेन एंड अगेन। नहीं समझ में आई बात? ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज। ठीक है। अब आपने कहा कि बाय मिस्टेक हो सकता है कि किसी बच्चे का बाय मिस्टेक या रिवैल्यूएशन किया गया, उसके मार्क्स अब 34 की जगह पे 44 हो गए हैं, तो क्या ये मार्क्स अपडेट होगा? होगा, क्यों नहीं अपडेट होगा? अब मार्क्स तो अपडेशन होगा ना, रिकॉर्ड नहीं रिपीट। रोल नंबर 1 दोबारा नहीं रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट करेगा, पर मार्क्स तो अपडेट होगा ना। कैसे अपडेट होगा? जस्ट टू चेक, मैं क्वेरी फायर करता हूं, जस्ट टू चेक क्या आ रहा है। अपडेट टेबल क्या है? MARKS सेट क्या था हमारा? मार्क्स था ना। एट्रीब्यूट क्या दिया हमने? हाँ, मार्क्स ही दिया, ठीक है। मार्क्स इक्वल टू सपोज 45, वेयर क्या था? रोल इक्वल टू
1, ठीक है। हमारा क्या आया? अब आप देखिए, व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट। देखिए, अगर हम लोग अब इसका मार्क्स को देखें, देखिए हमने यहां पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मार्क्स, हो गया? हुआ? देखिए हमारा क्या एडवांटेज है डेटाबेस की। एडवांटेज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग टू यूज फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? सभी को? पीछे नहीं समझ में आया आप लोगों को? फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि फॉरेन की दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, डेटा दैट कैन बी रिलेटेड फ्रॉम द ओन टेबल और फ्रॉम सम अदर टेबल। नंबर दो, अगर हमारे पास बेस टेबल में कोई डेटा वैल्यू है, उसी का रेफरेंस, द सेम रेफरेंस दैट हैज टू बी assigned in the reference table. Otherwise, it will reject the data, and by displaying there is violation in database name, उसका unique database violation करके वो reject कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ advantages हमारी आ रही हैं, और with the help of that advantage we are able to establish the relationship between the table. अब आप देखिए, हम आपको कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करके लिखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे रोल नंबर 1 डाला था, अब रोल नंबर 2 डाल रहे हैं, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, होगा? आप देखिए स्क्रीन पे हुआ। फिर हमने रोल नंबर 3 डाला, ये भी हमारा इंसर्ट होगा, ठीक है। रोल नंबर 4 डाला, सपोज इसने पाया है सपोज 36, ये हमने रन किया, हो गया। फिर रोल नंबर 5 डाला, might be this record may be rejected by the database. क्यों? Because क्या बोला? क्या? Exactly, integrity constraint, violated primary key not found. बात समझ रहे हो? This message that has to be displayed by the database. अभी क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे बेस टेबल में ये वैल्यू मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम या तो हम इसको वहां पे इंसर्ट करते हैं, पहले आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। जैसे यू सी इनटू मार्क शो द डेटा इनटू एसटीडी 5 ये रोल फाइल्स। सपोज रोल नंबर 5 और उसका नाम, बच्चे का नाम क्या है? सपोज क्या नाम है आपका? संध्या। ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर दिया। सॉरी, क्या है? STUD नहीं, पे भी कुछ भी दिक्कत होगी वो रिजेक्ट कर देगा, हो गया? yes, अब इसी को आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, इस टेबल में रिकॉर्ड 5 आ गया, yes, ठीक है। अब हम टारगेट टेबल में आते हैं, वहां पे हमारा टारगेट टेबल में क्या आएगा? अब इसने जो भी नंबर पाए हैं वो नंबर आपने असाइन कर दिया, सपोज ये, और ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो ये दिस इज द एडवांटेज दैट वी हैव सीन इन आवर डेटाबेस। ठीक है,
कोई दिक्कत? This thing all about, this is all about your foreign key. Anyone is any kind of query if you have? किसी को कोई दिक्कत हो, try to discuss, or you have to perform your practicals. Practical बहुत जरूरी है. Without practical you cannot retain your knowledge. और हमने आपको बोला कि just you try to develop a project, mini project. एक छोटे छोटे project आप बनाइए, and whenever you will move into the final year, definitely you have to develop that project as a major project, right? So if you are going to, if you are capable to develop a project, definitely your confidence that has to be built. अभी आप जानते हो, इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है? और अब इसके बाद हम लोग जैसे अभी हम इसमें आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं कि हमने जब फॉरेन की को ऐड किया है, हो सकता है in some cases your foreign key that may not required for the further processing. You have to drop the foreign key. पहला हमने क्या बोला कि अगर कोई exist, if you have a existing table, in that table how you can add the foreign key, या how to add the primary key. If you had added the primary key, how you can delete the primary key. Number 1 क्वेश्चन आता है कि add the primary key in your existing table. ठीक है, कैसे, क्या क्वेरी लिखोगे? Alter table name, add प्राइमरी की, और जिस एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की लगाना उसको पैरेंथेसिस के अंदर आप उसका नाम लिखते हो. बाय दिस यू आर केपेबल टू ऐड द प्राइमरी की इन योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस. क्लियर? अब हम ड्रॉप की बात आते हैं. अभी हमने ऑल्टर टेबल कमांड से यहाँ पे आपको दिखाया था. ऑल्टर क्वेरी आपको एक बार फिर से हाईलाइट करता हूँ. जैसे ये क्वेरी है, हमने क्या लिखा? ऑल्टर. देखिएगा, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए. स्क्रीन आपको थोड़ी सी हमने बड़ी करने की कोशिश किया है. क्या है? हमने यहाँ ऑल्टर टेबल मार्क्स, समझ रहे? ऑल्टर टेबल मार्क्स, ये हमारा जो है रेफरेंस टेबल का ऐड. हमें क्या करना है कि फॉरेन की ऐड करना है. किसके ऊपर? कंस्ट्रेंट लिखा, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर फॉरेन की लगानी थी उसका नाम के साथ अंडरस्कोर के साथ क्या लिखा? एफ की. फिर हमने लिखा फॉरेन की, और जिस एट्रीब्यूट के ऊपर फॉरेन की बनाना है उसका नाम यहाँ लिखा. फिर उसके बाद हमने कहा रेफरेंसेस. क्यों रेफरेंसेस? क्योंकि वी हैव टू फेच द डेटा फ्रॉम द बेस टेबल. और बेस टेबल का नाम क्या है? एसटीयूडी. तो यहाँ पे देखिए रेफरेंसेस एसटीयूडी. आपको समझ में आ रही बात? yes, कोई दिक्कत तो नहीं है? no, तो दिस इज द, बाय दिस वी आर एबल टू ऐड द फॉरेन की इन योर एग्जिस्टिंग टेबल. ठीक है? अभी हम एक बार फिर से हम आपको चारों क्वेरी फिर से करते. अभी हम इसकी ड्रॉप क्वेरी देखते हैं. लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉप द फॉरेन की. क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉप द फॉरेन की फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल. ठीक है? क्लियर? तो हाउ यू राइट द क्वेरी? जस्ट यू सी, just I am highlighting this query. हमने क्या लिखा? ऑल्टर कमांड, डीडीएल कमांड है. ऑल्टर टेबल नेम. क्लियर? ड्रॉप कंस्ट्रेंट किसके ऊपर लगाया था हमने? रोल के ऊपर लगाया था. तो क्या कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है? फॉरेन की का कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है. हमने फॉरेन की लगाई है, तो किसके ऊपर लगाया था फॉरेन की? रोल के ऊपर. जब ये आप रन करोगे, योर कंस्ट्रेंट दैट हैज टू बी ड्रॉप्ड. तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं. यू विल गेट दिस. हो गया? ड्रॉप हो गया. क्या मैसेज आ रहा है? टेबल ऑर्डर.
टेबल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? फॉरेन की, जिसपे हमने लगाया था। कोई डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जब आप कंपटीशन के लिए जाते हो, चाहे आप हायर एजुकेशन बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कहीं पे भी आप डेटाबेस का काम करोगे, दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप आगे आइए। जैसे हमने प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, इसी की प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। कैसे ड्रॉप करोगे? लिखिए, ड्रॉप द प्राइमरी की फ्रॉम द STUD टेबल ऑन रोल एट्रीब्यूट। STUD टेबल, टेबल क्या है आपकी? STUD है या मार्क्स मान लो, उसके ऊपर भी बनाना है। On the roll attribute. On the roll. Drop the primary key constraint. लिखो, drop the primary key constraint from STUD table. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आप इसको कैसे ड्रॉप करेंगे? ऑर्डर टेबल, यहाँ पे हम लोग सपोज प्राइमरी की क्या हमने बनाया था? ठीक है, क्या आया? जैसे मान लीजिए हमारी टेबल का नाम मान लीजिए मार्क्स है या STUD है, उसके ऊपर हमने प्राइमरी की, मार्क्स के ऊपर भी तो हमने प्राइमरी की लगाई है। हम उसके एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना चाहते हैं। अभी हमने फॉरेन की ड्रॉप किया, अब हमने प्राइमरी की ड्रॉप करते हैं। तो हाउ यू विल ड्रॉप द प्राइमरी की? तो ऑर्डर टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। तो जो भी आप जानते हो कि किसी भी टेबल पे एक ही प्राइमरी की बनती है, एक से ज्यादा तो प्राइमरी की बनेगी नहीं। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। और इसके बाद आपको देखना होगा, कुछ और क्वेरी करोगे आप? ये सारी हमने आपकी क्वेरी यहाँ पे दिखा रखी है। ड्रॉप टेबल कमांड, ये सब वही सारी क्वेरी है। ड्रॉप प्राइमरी की फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ऑल्टर टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की, यही सिंटैक्स है। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की हो गया। ड्रॉप फॉरेन की कंस्ट्रेंट फ्रॉम द कोर्स टेबल, तो ऑल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट जिसके ऊपर हमने बनाया था। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? दिस इज वेरी गुड एग्जांपल that you have to understand. अब एक और की आपकी आती है, that is called unique key. A unique key is similar to primary key. कोई दिक्कत? Unique key is similar to primary key. That the purpose of unique key to ensure that information in the column for each record is unique, like your driving license number, like your telephone number, like your Aadhaar number, like your, this is the unique. ठीक है, तो like your email ID, like your telephone number, driving license number, Aadhaar number, table may have many unique, हो सकता है भाई आपके पास, जैसे आप स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हो, and that database that can consist of a student information. The student is having their roll number, the student is having their name, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पैन नंबर, आधार नंबर। तो so many fields is having some unique value, like your email ID. Email ID is a unique,
ठीक है, like your mobile number is unique, like your PAN number is unique, like your driving license number is unique, like your passport, like your आधार। तो एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको ऐड करेंगे, क्रिएट टेबल, ये लिया आपने कंस्ट्रेंट यूनिक नेम, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स, क्या है, क्रिएट टेबल, मान लीजिए हमें क्या टेबल में कोई बनाना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखिए एक क्वेरी हम लोग फायर करते हैं, जैसे लिखिए क्रिएट टेबल client underscore master, create table client underscore master is having unique constraint on client underscore no, मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक टेबल ऐसी क्रिएट करो जिसका नाम क्या है, क्लाइंट मास्टर है, और उसमें जो क्लाइंट नंबर है वो यूनिक है, होगा क्लाइंट नंबर तो यूनिक हो, कोई भी क्लाइंट है, जैसे आप क्या, इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर, तो यू हैव ए क्लाइंट एंड ईच क्लाइंट यू हैव टू असाइन द यूनिक आईडी, यूनिक नंबर। तो कैसे आप इसको क्रिएट करते हो, दैट यू हैव टू सी। क्या सिंटैक्स लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर, ठीक है। ठीक है, client underscore no, suppose char ठीक है। क्या हुआ, हमने क्या वेरीफाई किया कि एक एट्रीब्यूट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमने किया, क्रिएट टेबल क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर, कोई एट्रीब्यूट का नाम दिया, उसका डेटा टाइप दिया, उसकी साइज दिया, उसके ऊपर हमें कंस्ट्रेंट लगाना है। हमने आपको बार बार बताने की कोशिश किया है कि इन तीन चीज के अलावा अगर डीबीए कोई चीज लगाता है तो उसे हम लोग डेटा कंस्ट्रेंट कहते हैं। हेलो, हाँ, अभी थोड़ी देर बाद बात करिएगा जब क्लास में है। कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है, यूनिक करना है। तो सी नम
अंडरस्कोर यू की, ये की वर्ड है, ये आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके आगे उसका डेटा टाइप वो यूनिक है, ये आपका यूनिक। अब देखिए इसमें अगर हम लोग वैल्यू डालें, सपोज हमने एक और टेबल मान लीजिए, क्रिएट टेबल, सपोज मान लीजिए हमने कहा एक टेबल T1 बनाया, उसमें हमने कहा रोल, ठीक है। इसमें हमने इसका डेटा टाइप डाल दिया, मान लीजिए नंबर, और आगे लिखा कंस्ट्रेंट क्या, रोल अंडरस्कोर यू की यूनिक, ठीक है। फिर हमने मान लीजिए एक कहा नेम, और इसको हमने कहा var_char2 साइज 10, ठीक है। ठीक है, हमने एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने, समझ में आ रही बात? क्या हमने लिया कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम T1, कुछ भी रख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एट्रीब्यूट क्या है, रोल है, रोल को हमको यूनिक बनाना है। टेलीफोन नंबर लिख सकते थे, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिख सकते, कुछ भी लिख सकते थे जो आपकी यूनिक वैल्यू को होल्ड करता हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका डेटा टाइप लिख दिया, उसका साइज लिख दिया, कंस्ट्रेंट लिख दिया, रोल यू की यूनिक, नेम, डेटा टाइप, जो भी एट्रीब्यूट इसके साथ डिफाइन करना है यू मे डिफाइन। अब इसके बाद क्या आता है मैसेज, आफ्टर फायरिंग द क्वेरी योर टेबल दैट हैज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी भी पूछ लो, क्लियर। अब आप देखिए इसको जब आपने रन कराया तो क्या आया आपके पास। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू अगर डालते हैं, दिखता है बढ़िया, लेकिन इधर साइड का नहीं दिखता है। ठीक है, इधर हमने इसमें डाला इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, T1 वैल्यूज, पहला वैल्यू मान लीजिए 1, नाम है क्या, अनीता, ठीक है। पर इसका डेटा टाइप हम लोग ने कैरेक्टर लिखा है तो इसको सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको आप रन कराइए, हो गया। फिर हमने रोल नंबर 2 डाला, इसका नाम है, ठीक है, ये भी हो गया। अगर हम मान लीजिए फिर हमने तीसरी वैल्यू डाली, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं एक के बाद एक, दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि इसको रन किया आपने, व्हाट यू विल गेट, ठीक है, ये रिकॉर्ड आपके आ गए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यूनिक नहीं होगा तो रोल नंबर 1 फिर से ले लेगा, यही हम लोग को चेक करना है यूनिक है कि नहीं है। यस सर, बात समझ लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए मेरा 1 है तो 1 cannot be assigned to you, my driving license number cannot assign to anyone of this country, getting my point, this is the principle, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फिर से देखा, क्या देखा, यहाँ पे सपोज फिर हमने 1 डाला, भले ही कस्टमर का नाम, क्लाइंट का नाम बदल भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट यू विल गेट,
क्या आया? वायलेशन। तो आर यू सेटिस्फाइड? किसी को कोई मन में डाउट? तो आपने क्या क्या पढ़ा, की क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ पाओगे। और नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर अवेलेबल इन योर डेटाबेस सिस्टम एज पर योर सिलेबस। तो हम लोगों ने की के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ रखा है। की क्या होती है, कितने तरह की होती है, कोई बताए? सुपर की, एनीवन कैन डिफाइन सुपर की? आप बताओ, क्या नाम है आपका? नेक्स्ट अमृता। हाँ बताइए, व्हाट इज सुपर की? हाउ यू विल डिफाइन सुपर की? देखिए, हम आपके साथ पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, हम पढ़ा नहीं रहे। If I am giving some input to you people, you have to understand. If you have any problem, you have to ask immediately. मैं आपको कहीं मना तो किया नहीं कि आप मत पूछिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या आपको मना किया जाता है कि आप मत पूछें? ऐसा तो नहीं। हाँ, सुपर की क्या है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। किसी भी रिलेशन में जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन सुपर की कहलाता है। ठीक है? जैसे हमने कहा कि कोई रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये जो टेबल बनाई थी, उस टेबल में क्या था? रोल था और एक नाम था। 2 एट्रीब्यूट थे। तो हम पूछें हाउ मेनी कीज आर एग्जिस्टिंग इन दिस, हाउ मेनी सुपर की आर एग्जिस्टिंग इन दिस रिलेशन T1। तो आपने बोला कि यू हैव 2 एट्रीब्यूट, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज रोल एंड सेकेंड एट्रीब्यूट इज नेम। तो फर्स्ट सुपर की इज रोल एंड द सेकेंड सुपर की इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोल एंड नेम। एंड द सुपर की आर ऑल्सो डिफाइंड एज by a relation that is called 2 की power n minus 1, where n is the number of attributes in a existing table, in a existing relation. बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? तो सुपर की बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर, बहुत से बच्चों को सुपर की क्या होती है समझते ही नहीं है। ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की क्या होती है? हाउ यू विल डिफाइन कैंडिडेट की? DCA, आप बताओ। बीच में क्या नाम है आपका? बैठिए, आप बैठिए। जी देखो, हमने आपको बोला है कैंडिडेट की। देखिए, हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की। मिनिमल, देखिए सुपर की में क्या था? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। ये मिनिमल, कम से कम की का कॉम्बिनेशन या कम से कम की कैंडिडेट की कहलाएगी। तो कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की विच कंटेन नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है? It consists of maximum possible attribute which can uniquely identify. जैसे मान लीजिए कि हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया रोल नंबर, तो सभी के यूनिक है, मान लो। और हमारे यहाँ स्टूडेंट के नाम तो रिपीट करते हैं। तो जो रोल एट्रीब्यूट है दैट कैन possess unique data value, तो दैट एट्रीब्यूट वी कैन डिफाइन एज ए कैंडिडेट की। बट योर नेम एट्रीब्यूट दैट कैन कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, the same name students that may exist in your class. जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? संध्या। तो संध्या के 5 बच्चे हो सकते हैं, इसी क्लास में हो सकते हैं। तो ये क्या मतलब रिपीटिशन ऑफ डेटा है, ये हमारी रिडंडेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना।
that will reflect the redundancy of database, and this redundancy that can be eliminated with the help of constraint, with the help of key. This the redundancy क्या है? Duplicacy of data, and the duplicacy of data that can be eliminated with the help of key. हम उसको प्राइमरी की डिफाइन कर दें, हम उसको यूनिक की डिफाइन कर दें, हम उसको फॉरेन की डिफाइन कर दें, तो रिडंडेंसी आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट की कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये रिलेशन आपका दिख रहा है कि एक रिलेशन जो है बुक का रिलेशन है, दैट कैन कंसिस्ट ऑफ रोल, नेम एंड मोबाइल नंबर। तो रोल एट्रीब्यूट दैट कैन possess the unique data value, so this is a candidate key. But name attribute that can repeat the data, so this attribute is not defined as a key, that can be termed as a non-key attribute. उसे हम क्या बोलते हैं? That is called non-key attribute. और तीसरी बात में ये attribute है, तो यहाँ पे role and name are defined as a candidate key. If any one of the key is defined as a candidate from the candidate to primary key, the remaining candidate key will acts as a alternate key. ये alternate key की definition हो गई। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने ये सारी चीजें इसको देख लिया। फिर प्राइमरी की के बारे में कुछ कहना नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं। ये भी आपको रूल्स सारे आपको क्लियर हो रहे होंगे। और आगे और अल्टरनेट की हो गया, फॉरेन की हो गया, यूनिक की हो गया।